जय हिंद दोस्तों। आज हम द हिंदू के 23 नवंबर के न्यूज को कवर करेंगे। तो द हिंदू में हम उन्हीं खबरों को कवर करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, इम्पोर्टेंस हो। तो आइए शुरुआत करते हैं द हिंदू की विद फ्रंट न्यूज के साथ। जो है जो 11 दिनों से लगभग फंसे टनल में जो 41 वर्कर्स है, उन लोग के लिए आज का दिन खुशखबरी का दिन हो सकता है। वे मे बी लाइकली कि वे जो है सनलाइट देख पाए। वर्कर्स इन उत्तरकाशी टनल क्लोजर टू फ्रीडम, आज हो सकता है कि वे बाहर आ जाएं। The 41 workers stuck in collapsed tunnel at Silkaria, the Uttarakhand, are likely to see sunlight on Thursday for the first time since they were trapped on November 12, says rescue agencies working round the close to create an escape route. तो हुआ क्या था कि वे जिस टनल पे काम कर रहे हैं, वे इस टनल में फंसे हुए थे। उन टनल को आज जो रेस्क्यू एजेंसीज है उनके द्वारा कहा गया है कि आज मे बी लाइकली कि ये जो है सारे मजदूर को रेस्क्यू रेस्क्यू के द्वारा बाहर कर लेंगे। और उस ड्रिलिंग के द्वारा जो है तक अभी तक जो मैसेज उन तक जो नेसेसरी फ्रूट्स वाटर सप्लाई किया जा रहा था। अब वे सारे मजदूर जो लेबर्स हैं, उनको वर्कर हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। बाय 5 p.m. on Wednesday, agencies had managed to drill through 45 meters of debris to reach the workers trapped in sections between the 53 meters and 59 meters. However, the rescue work with picked up pace over the past 36 hours was halted for a brief period late in the evening when the auger machine used to bore through debris stuck in obstacle. Reportedly, a giant rock operation was delayed. Agencies um, mulled, mulled over the best way to remove obstacle. Uttarakhand Chief Minister Pushkar, Pushkar Singh Dhani has released Uttarkashi, aiming to meet the workers as soon as they come out. वहां के जो सीएम है पुष्कर धानी, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उनसे मुलाकात होगी। As a mock drill was conducted to ensure that the final phase of the rescue does an ambulance is being kept on the Stanley to ferry the workers temporarily hospital set up in the victinary. Alternative plans, the rescue plans are also working on a plans uh, apart from the horizontal drilling. The debris vertical drillings is being done uh, simultaneously at the side by say SGVN, SJYNL, according to the Mahmood Muhammad, managing director of NHIDCL. He added he added that the THDCL has also initiated the constructions of the rescue tunnel from the Barcode Barcode end, with the blast already completed, resulting in 9.1-meter drift. Efforts are being made to carry out their blast per day, he said. In another attempt to rescue the workers, perpendicular horizontal drilling was continued by Rail Vikas Nigam Ltd. The vertical drilling toward the Barcode end is the being done by the ONGC, which has mobilized machinery from the US, Mumbai and Ghaziabad for a vertical boring. तो इसका जो एग्जाम्पल है, अभी हाल ही में एक मूवी आई थी रानीगंज। रानीगंज में जो फंसे हुए थे,
लेबर मजदूर जो कोल माइनिंग में फंसे हुए, जस्ट लाइक इसका एग्जांपल है कि उसमें फंसे हुए मजदूरों को कैसे ड्रिल किया जाता है और ड्रिल से उनको बाहर निकाला जाता है, और ड्रिल के द्वारा पाइप डाला जाता है और उन पाइप से कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाता है का बेस्ट एग्जाम्पल है, और उन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाता है। जस्ट लाइक एक रिपीटेबल जो इवेंट है, इनमें उन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है जो फंसे थे, उनको ड्रिल किया जाए हॉरिजॉन्टल ड्रिल के द्वारा जो है वो पाइप के थ्रू कल आज जो है बाहर निकाला जाएगा। इट्स द बिगेस्ट एंड गुड न्यूज फॉर दी एवरी पर्सन्स इन द ट्रैप्ड in channel 41's workers. So this is the news. And second news, two army captains, two soldiers killed in a Rajauri operations. तो जो आर्मी में कैप्टन्स थे, दो आर्मी कैप्टन और दो सोल्जर वहां पे घायल हुए हैं। Two army captains and two soldiers were killed in a outgoing operation to flush the out terrorist hiding hiding in village in Rajouri district of Jammu and Kashmir on Wednesday. Sources said a Jammu-based army spokesman said a security force launched joint operations in Gulbarga for the east in the Pir Panjal Valley on November 19 following specific intelligence on the presence of militant. The terrorists have been injured and surrounded, and the operations are the progress amid act of uh, valor and sacrifice by own brave heart in trying to prevent collateral damage of collateral damage to women and children in highest traditions of the Indian Army, the army spokesman said. तो जो इवेंट हुआ है जो वहां पे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक मिट्टी के घर में जो आतंकवादी घुसे हैं, उस आतंकवादी ही जिस घर में घुसे हैं वहां पे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करते हुए जो दो आर्मी और दो जवान वहां पे शहीद हो गए। आर्मी के दो कैप्टन और दो जवान शहीद हुए राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। सेकेंड न्यूज इज आई turn to the people, to not members. Listen to the people, not the number. कहने का मतलब है लोगों से सुनिए, किसी संख्या से नहीं, किसी डेटा से सुनिए। ऐसा कहा गया कि किसी नंबर से मत सुनिए, आप डायरेक्ट लोगों से सुनिए। कि किसी भी पॉलिसी मेकर्स के जो योजना बनाते हैं, फिर डायरेक्ट लोगों से सुने और उनकी बात को समझें कि उनकी रियल में जो पॉलिसी रियल में दरकार है, जरूरत क्या है, उस हिसाब से आप पॉलिसी मेक करिए। ये उसी बेस पर है। The Indian economy has incomes problems into not a growth problems. Incomes are not growing sufficiently or sustainably for a very large number of the people. Even though overall GDP growth is a good, there is a increasing pressures for the reservation of the of job for all economically weaker section, regardless of the caste or religions. Economists economists on both sides, for the government and those against it, are debating whether the economy is creating enough jobs, and are questioning questioning the
veracity, veracity, veracity of the government data. Those against the government also want to show that the problems of growth with the insufficient job has been created by the policies of the present government and not the previous one of the one. They are like sick Healy, who was the looking for his lost key under the lamp rather than in the darkness where he lost them. The data it was they can see but cannot explain the problems and will not point the right solution. कहने का मतलब है जो हमारे हमारे देश की जो इकोनॉमी है लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम में गिरावट और साथ ही साथ गरीबी और बेरोजगारी में भी लगातार वृद्धि हो रही। तो इसके लिए क्या ऐसा प्लान किया जाए, कैसे कैसे स्कीम बनानी चाहिए जिससे जो कि लोगों के पास पर्याप्त रोजगार हो और साथ ही साथ उस चक्र से बेरोजगारी के कारण जो गरीबी होती है और गरीबी के कारण अशिक्षा, अशिक्षा के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जो है प्रतिस्पर्धा से बाहर होना, ये सारे सर्कल से कैसे बाहर निकाला जाए, इस जो है इस सर्कल से इस इस जो ये जो बाउंड्री है इसे इसको ब्रेक थ्रू करने की नीड है, इस पे काम करने की जरूरत है। कहने का मतलब द यूएस इकोनॉमी जो अमेरिकी इकोनॉमी है वे कैसे गुड है। Economy seems to be doing well according to the headlines. Economic numbers growth is good and employment number have been improved. Yet polls show that the large majority of US citizens are dissatisfied with the state state of their economy. This has become a major issue before a president election scheduled for the November. The US president even walked with the strike auto workers demanding a fair deal, fair deal, fair deal, fair deal from their employers. US statistics of the growth and employment whose veracity no one doubts are not measuring what really matters. Common citizens, workers want to fair deal and adequate and secure women to cope with inflation. The president agreed with the workers and CEO auto companies were paying themselves so are too much while asking workers to tighten their belt to improve the competitiveness of the USA companies. तो यूएसए की बात यहाँ पे की गई है कि यूएसए का इकोनॉमी दिखता गुड है, लेकिन वहाँ के लोग अनसेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नर से, गवर्नमेंट से, वहाँ की स्कीम से, क्योंकि वहाँ पे जॉबलेस जो है इकोनॉमी है, जॉबलेस इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो है जॉब क्रिएट नहीं है, जॉब दैट आर job that are not good. The overall problems in income India, income में problems है, totally आय में problems है India, according to economics is is that insufficient number have moved out of the agriculture into manufacturing has been this has been the historical pattern in sustainable growth in all countries, including the USA 100 years ago and China more recently. India policymakers through they had found a shortcut in the 1990 directly from the agriculture to service with the boost in the growth exportable information technology service and shortcut has ended in a cult day sack. There is very little room in high-end service to absorb the large number of young Indians in need observe whoever the job require level of education that people in rural areas do not have. Therefore, when they move out of the agriculture, they need work that fit their present abilities and put them into a
ladder than that they can climb. They need job where they can learn high skills and earn more. Labor intensive manufacturing, service and construction provide them. And first step, the millions of the Indians who have moved up agriculture in the last 3 decades moved moved into such job. तो अभी लगातार जो बात हुई है, जो किसान लगातार अपनी कृषि से लगातार अन्य क्षेत्र पर मूव हो रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए और लेबर इंटेंट जॉब क्रिएट करने की दरकार है और स्किल की जो दरकार है, ताकि भी अच्छे जॉब की ओर जा सकें। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का बढ़ता घटता जो वेटेज है, डेवलपिंग कंट्री के जो आइडेंटिफिकेशंस होते हैं, इंडिकेट होते हैं कि कैसे कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। सर्विस सेक्टर का जो हार है किसी इकोनॉमी में बढ़ता है, तो समझा जाता है कि इकोनॉमी का अच्छा कंडीशंस है। The economic value is a caregiving. Attention will shift toward creating genuine social enterprises rather than the enterprises for the creating economics efficiencies are surplus which corporate enterprises are designed for those who provide care, and their work of the caregiving must be valued more than the economics value them. The present paradigm of the economics growth, caregivers traditionally were women and plugged out of families which are the natural social enterprises to work of factorious officers। तो जो कहा गया है, एक फैमिली गिवर्स जो फैमिली केयर्स होता है, उनकी इकोनॉमी को कैसे improve किया जाए, उनके जो स्पेशली वुमेन्स होते हैं उनके लिए कैसे इकोनॉमी तय किया जाए, उनके लिए पॉलिसी। तो रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स के सलूशन की ओर अगर अच्छी ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, पर जो नॉट जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ जिसको बोला जाता है। इस जॉबलेस ग्रोथ को अगर ब्रेक थ्रू करना है और जॉब से इसमें जो है जीडीपी में पर कैपिटा ह्यूमन जो है पर्सन उसको बढ़ाना है, तो जो छोटे स्मॉल व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं और साथ ही छोटे किसान हैं और साथ ही महिलाओं की बात सुननी होगी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको जो है डायरेक्ट छोटे किसान, महिलाओं और छोटे व्यापारियों की बात सुननी होगी। एक्चुअल में उनकी नीड क्या है, उनकी जवाब उनको चाहिए क्या, इस बात के लिए जो है पॉलिसी मेकर को ध्यान दे। द लेसन फॉर द पॉलिसी मेकर इज द don't count of historical statistics guide good policy for the future, listen to the people and what matters them। उनके लिए क्या मायने हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ना कि किसी डेटा के हिसाब से आप पॉलिसी बनाएं, ये कहने का प्रयास किया गया है यहाँ। Reporting animals crucially makes children suffer। पशुओं को बचाना, पशुओं के साथ क्रूरता को बचाना जो है चिल्ड्रन की सुरक्षा करती है, आपके बच्चे को सुरक्षा प्रदान करती है। चाइल्ड अब्यूज, जो बच्चों की दुर्व्यवहार है, इज ग्रेव एंड रैम्प्ड इन इंडिया। तो बड़ी और असहनीय है इंडिया में जो है बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार अति और दर्दनाक और विराट रूप है। मतलब इसका जो बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार है बहुत होता है इंडिया में। ये कहने का मतलब एक 2007 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया था, जिसमें कि कहा गया था हर 3 में से दो बच्चे हैं जो दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। Empirical study about the incident of child abuse in India. The study specifically examined the prevalence of the physically abuse, sexually, emotionally abuse, and girls' child neglect in India. It found that 2 out of the every 3 years were physically abused
one half the children reported having the faced one more form sexual abuse, and every second child reported facing emotionally abuse. तो इस रिपोर्ट में कहा गया जो 2007 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें स्पेशली कहा गया था कि हमारे बच्चे जो है इमोशनली इमोशनली एब्यूज होते हैं, जो भावनात्मक दुर्व्यवहार से शिकार होते हैं, फिजिकली दुर्व्यवहार होते हैं, और साथ ही मेंटली सेक्सुअल एब्यूज, जो सेक्सुअल उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ये हर 3 में से 2 बच्चों के साथ होता है, ऐसा रिपोर्ट कहा गया था। लेकिन फिर भी तो नजरअंदाज किया गया था। चाइल्ड एब्यूज इंडिया क्यों होता है बच्चे में? इसके कई कारण हैं, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर्स, इंडिया की फैमिली स्ट्रक्चर, साथ ही साथ लेक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंट जो है जो कानून है, कानून की अप्रभावी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना, और साथ ही साथ गरीबी, अशिक्षा, और साथ ही साथ सांस्कृतिक जो कल्चरली है, ये भी इफेक्ट करता है बच्चों के दुर्व्यवहार पर। एक रिपोर्ट कहा गया है कि एनिमल क्रूशियल एनिमल जो है, एनिमल के साथ क्रूरता अगर की जाती है तो उसका प्रभाव जो है चाइल्ड के जो एनिमल के साथ दुर्व्यवहार होता है, वैसा ही दुर्व्यवहार मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि बच्चों के साथ भी जो है दुर्व्यवहार हो। The link between animal crucially the human violence first came light and 1751 the Williams Hogarth. A fourth stage crucially since then there have been a plethora of studies highlighting the undeniable link. 1980 pilot study conducted in England found evidence that the suggest children are at risk of abuse or the neglected in household that abuse their family pet. According the study, out of the 23 families that had a history of animal abuse, 83% had been identified by animal social service agencies as having children at risk abuse of neglected. तो जो स्टडी की गई है उनमें लगभग 23 फैमिली में जो है 83% या अध्ययन में सामने आया है कि फैमिली में पशु दुर्व्यवहार किया जाता है, पशुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका चांस होता है कि वे के घर के बच्चे भी जो है जो चाइल्ड एब्यूज है उनके शिकार होते हैं। A different study 53 families in which child abuse had occurred carried out of the New Jersey US in 1983। यूएस में भी एक स्टडी हुआ 53 फैमिली में, जिसमें कि पाया गया कि 83 केसेस जो है एनिमल और चाइल्ड से जुड़ा हुआ लिंकेज एक केस था। ये सारे जो पशुओं के साथ क्रूरता को आप सेव करके जो है चाइल्ड एब्यूज को सेव किया जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। इस आर्टिकल के हिसाब से अगर आप चाइल्ड जो जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करके जो है चाइल्ड एब्यूज को रोका जा सकता है। लिंक है कि अगर हम जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पोलाइट व्यवहार करते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ भी पोलाइट व्यवहार होता है, हमारे फैमिली में बच्चे का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। तो ये रिपोर्टिंग द prosecuting animal abuse is not just about saving girls। तो जो ये आर्टिकल है ये किसी भी तरीका से ये नहीं कहता कि आप एनिमल सेविंग कर, it is about protecting our child from the violence and securing a better a future of brighter future for them. Understanding these important things can stop and cycle of violence and its source and help make up children suffer। तो ऐसे करके हम ये जो रिपोर्ट बताती है, तो जहाँ जिस फैमिली में एनिमल के साथ क्रूरता व्यवहार किया जाता है, बिहेवियर किया जाता है, उसकी फैमिली में बच्चे के
साथ बिहेवियर होना बहुत लाजमी सी बात होती है। तो अगर बच्चों को एब्यूज से बचाना है, उनकी ब्राइट ब्राइट फ्यूचर करनी है, उनको बढ़िया फ्यूचर देना है, तो पशु क्रूरता को बचाना होगा। इससे दो दो डायमेंशन एक साथ जो है डबल बेनिफिट होता है। एक तो पशुओं की सुरक्षा होती है, बायोडाइवर्सिटी सेव होता है, और साथ ही साथ बच्चे का ब्राइट फ्यूचर भी होता है, बच्चे के हेल्थ पर मेंटली इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो आर्टिकल है बच्चों के हेल्थ पे, बच्चों के बाल अधिकार सुरक्षा के ऊपर है, और साथ ही साथ जो जानवरों के प्रति जो है जागरूकता के लिए है। ये था हमारा आज का आर्टिकल, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस था। तो जीएस पेपर टू और साथ ही साथ जीएस पेपर फोर्थ के साथ आप ह्यूमन इथिक्स के साथ इसको जोड़ सकते हैं, और जीएस पेपर टू सोशल जस्टिस से इसको लिंक कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल था, ये जो एडिटोरियल था, इसको आप जीएस पेपर टू से को लिंक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। मिलते हैं कल के सेशंस में कुछ नए